صدر مملکت آصف علی زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری اور بعض ایڈیشنل ججز کی توثیق کی منظوری دے دی۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی منظوری۔ سمری کی منظوری کے بعد جلد ہی ججز کی حلف برداری تقریب منعقد کی جائے گی۔ نئی تحقیقاتی کمیٹی میر رضا کی لاش ملنے والی جگہ پر پہنچ گئی۔ تحقیقاتی ٹیم میں ہمراہ میر رضا کے والدین بھی موجود۔ تحقیقاتی ٹیم کے رکن ایس ایس پی علی رضا کا جائے وقوع پر شواہد کا جائزہ۔ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ پروگرام میں سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی شرکت۔ 6000 سے زائد طلبہ و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان کی تاریخ، علیحدگی پسند بیانیے، دہشت گردی، انسانی حقوق، قومی سلامتی اور نوجوانوں کے کردار پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ خطاب میں کہا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل علیحدگی پسندی یا تشدد نہیں، بلکہ آئینی، سیاسی، انتظامی اور ترقیاتی ذرائع کے مؤثر استعمال میں ہے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند اور دہشت گرد تنظیموں کی سیاسی حکمت عملی کا بنیادی ذریعہ تشدد ہے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ، ان کے نیٹ ورک کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا۔ جعفر ایکسپریس کے مسافروں، موسیٰ خیل میں شہریوں اور تربت میں مزدوروں کو نشانہ بنانا انسانی حقوق اور حق زندگی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ نوجوانوں کو انتہا پسند اور ریاست مخالف بیانیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی، علمی اور فکری طور پر تیار کرنا ہوگا۔ 11 اگست پاکستان میں اقلیتوں کا قومی دن۔ اس دن کا مقصد ملک میں اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ اور قومی ترقی میں ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ یہ دن قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو آئین ساز اسمبلی میں کی گئی تاریخی تقریر کی نشاندہی کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریر میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی تھی۔ قائد اعظم کا تقریر میں کہنا تھا کہ مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر کسی شہری کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ یہاں بلا تفریق ہر ایک کو برابر حقوق حاصل ہیں اور ہر شہری آزاد ہے۔ اقلیتی برادری نے تحریک پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا اور قیام پاکستان سے اب تک تعمیر وطن میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہے۔ اقلیتی برادری پاکستان کے دفاع میں بھی پیش رہی، جنہوں نے وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا تمام شہریوں خصوصاً اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا عزم۔ اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر پیغام میں تمام مذہبی رہنماؤں، تعلیمی اداروں، ذرائع ابلاغ اور سول سوسائٹی پر زور دیا کہ وہ ایسا سماجی ماحول بنانے میں اپنا کردار ادا کریں جہاں تمام شہری کے عقیدے، شناخت اور انسانی وقار کا احترام کیا جائے۔ پاکستان کا آئین بنیادی حقوق، مذہبی آزادی اور قانون کے تحت مساوی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ ان آئینی اصولوں کی پاسداری مضبوط اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کو مساوات اور انسانیت کی خدمت اور نمایاں اقدار کا حامل ملک بنائیں گے۔ اقلیتوں کی عزت اور ناموس سے تحفظ اور ترقی پر کبھی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اقلیتوں کے قومی دن پر پیغام۔ کہا کہ پنجاب حکومت اقلیتوں کو تعلیم اور ترقی اور فلاح و بہبود کا پورا حق دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب کو اقلیتی برادری کے لیے مائنورٹی کارڈ متعارف کرانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پنجاب میں تیزی سے ایسے معاشرے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے جہاں محبت، رواداری پہچان بنے گی۔ اقلیتی پاکستان کے دلکش رنگ ہیں اور ان رنگوں کو کبھی مان نہیں پڑنے دیں گے۔ 11 اگست وہ تاریخی دن ہے جب قائد اعظم نے پاکستان میں تمام شہریوں کے مساوی حقوق کا واضح تصور پیش کیا۔ اقلیتوں کے قومی دن پر پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کا خصوصی ویڈیو پیغام جاری۔ کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کا واضح ویژن ہے کہ اقلیتیں ان کے دل کے قریب اور ان کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنی اقلیتی برادری کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہیں۔ قائد اعظم کی پشاور آمد محبت اور عقیدت کی ناقابل فراموش داستان۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے کرنل ریٹائرڈ جی بی شاہ نے قیام پاکستان اور قائد اعظم سے وابستہ بچپن کی خوبصورت یادیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد سول انتظامیہ مکمل طور پر درہم بھرم ہو چکی تھی کیونکہ کئی بڑے افسران بھارت منتقل ہو گئے تھے۔ 17 اپریل 1948 کو ریڈیو پر اعلان ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پشاور تشریف لا رہے ہیں۔ قائد اعظم کی پشاور آمد کی خبر سنتے ہی عوام میں اپنے قائد کو دیکھنے کے لیے غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا۔
कायद-ए-आज़म की आमद के मौके पर वहाँ कोई खास पुलिस नफरी तैनात नहीं थी, क्योंकि पख्तून अवाम इनके शहदाई थे। कायद-ए-आज़म की गाड़ी हमारे करीब पहुंची तो मेरे पीछे खड़ी एक खातून ने अचानक बुलंद आवाज में इन्हें पुकारना शुरू कर दिया। कायद-ए-आज़म ने मुझे खातून का बेटा समझकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने इनसे मुसाफा किया और वो लम्हा नाकाबिले फरामोश बन गया। जश्न आज़ादी की आमद पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोशो खरोश दीदनी है। यौम आज़ादी की आमद पर शहरियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि वतन की मोहब्बत हमारे दिलों में रची बसी है और इसका इश्क हमारी रगों में खून बनकर दौड़ता है। पाक सरजमीन हमारे ख्वाबों का चमन है, जिसे हमने बहुत कुछ कुर्बान करके हासिल किया। पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं जिसे हासिल करने के लिए कठिन सफर तय करना पड़ा। हमारा वतन हमेशा यूं ही आज़ाद रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISPR और DHE इंतजामिया के ताउन से शजरकारी मुहिम 2026 का आगाज। शजरकारी मुहिम में नौजवानों और खवातीन समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुहिम में मुख्तलिफ स्कूल और ISPR इंटर्नशिप में शरीक तलबा ने भी हिस्सा लिया। शजरकारी मुहिम में शरीक अफराद का कहना था कि ISPR और DHE के ताउन से शजरकारी मुहिम काबिल तहसीन इक़दाम है। मूनसून शजरकारी मुहिम हरियाली में इजाफे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का एक बेहतरीन मौका है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल का सामना कर रही है। मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। यौम आज़ादी की आमद आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की अहलियाने वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी और कौमी यकजहती की अज़्म का यादा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कौमी इत्तेहाद और पाकिस्तान से वफा का दिलकश अंदाज में पैगाम। नौजवानों का कहना है कि पाकिस्तान हमारे ख्वाबों की ताबीर, उम्मीदों का मरकज और दिलों की धड़कन है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे लिए अज़्म हौसले का सरचश्मा हैं। उनका लहू कभी फरामोश नहीं करेंगे। इल्म, किरदार और वतन की खिदमत हमारी मंजिल है। सब हिलाली परचम इत्तेहाद, वफा और कुर्बानी का दर्ज देता है। अर्ज़े वतन से तजदीद वफा के साथ 79वीं जश्न आज़ादी का शानदार टीज़र जारी कर दिया गया। चलो सब्ज़ हिलाली परचम थामे, इस शब आज़ादी की शान शौकत को मज़ीद चार चांद लगाएं। आओ सब मिलकर एक आवाज़ हो और फ़िज़ाओं में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा गूंजे। यादगार फतह पर शब आज़ादी अगस्त की रात एक शानदार प्रोग्राम इनेकाद होगा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों में शहरियों की खिदमत में हमा वक्त कोशा। 21 फरवरी मेडिकल कैंप्स का कामयाब इनेकाद। मुस्तहक शहरियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम। माहिर डॉक्टर्स और तरबियत याफ्ता तिब्बी अमले ने शहरियों का तिब्बी मुआयना किया। मजमूई तौर पर 2115 मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना और इलाज किया गया। मुस्तहक और ज़रूरतमंद अफराद में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। कौम को मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। जिंदा कौमें चैलेंजेस को अपने लिए मौके में बदलने की कोशिशें करती हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का तकरीर से खिताब। कहते हैं कि ग्रीन यूथ मूवमेंट को मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मौजूदा है। आज दुनिया की नज़रें हम पर हैं, हमारे लिए मौके मिल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से मुल्तान प्रेस के सदर की मुलाकात। मुल्तान के सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए तबादला ख्याल। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल का हल पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ सहाफ़ियों के मसाइल के हल में ज़ाती दिलचस्पी रखती हैं। मरियम नवाज़ की हुकूमत में पंजाब के सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। 11 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 7 पॉइंट्स की कमी, 1,80,661 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 212 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 251 कंपनियों के हिस्से में कमी, 100 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। कराची के इलाके अयूब बोर्ड में पुलिस चौकी के करीब ही शहरी गैर महफूज। पुलिस चौकी से चंद मिनट के फासले पर डाकुओं ने होटल लूट लिया। 3 डाकू पैसों से भरी हुई 1 से ज्यादा शॉपिंग बैग लेकर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 डाकू होटल में आए। कैश काउंटर पर 2 मुलजिमान आते ही एक मुलजिमान ने काउंटर से पैसों से भरे हुए शॉपिंग बैग निकाले। मुलजिमान ने होटल पर बैठे अफराद से भी मोबाइल फोन और कैश लूटा। वारदात करने वाले डाकुओं के चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं। कराची के इलाके मलीर गुलशन कादरी के करीब 3 बोरियों में बंद एक शख्स की कटी हुई लाश मिली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लाश की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। बज़ाहिर देखने से नौजवान की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान लगती है। लाश के 3 टुकड़े कर दिए गए। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात का मुबैना पुलिस मुकाबले 6 जख्मियों समेत 9 मुलजमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिलें और लूटा हुआ सामान बरामद। मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। लेडी स्मगलर समेत 15 मुलजमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन पुलिस की कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलविस 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुलजमान से 11 लाख रुपए मालियत की चोरी शुदा मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। मुतासरा शहरी मनी चेंजर से रकम तब्दील करा के वापस जा रहा था कि मुलजमान ने जेब तराशी करके रकम चोरी कर ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना शहजाद टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फौरी तहकीकात का आगाज किया। जदीद तकनीकी CCTV फुटेजेस और इंसानी ज़राए की मदद से मुलजमान को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मलीर मेमन गोड के करीब नाले में 4 साल बच्चे के डूबने की इत्तला। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे की तलाश के लिए गुज़श्ता दिन सर्च ऑपरेशन जारी। वाटर रेस्क्यू टीम गोताखोरों और वाटर रेस्क्यू आलात की मदद से बच्चे की तलाश में मसरूफ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी की तैयारियां हत्ती मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक लिबर्टी चौक पर शानदार तक़रीबात का इनेकाद होगा। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक का लिबर्टी चौक का तफसीली दौरा। जश्न आज़ादी के लिए लिबर्टी चौक पर इंतज़ामात का जायजा लिया। ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी के लिए मुतबादिल रूट और पार्किंग प्लान पर तबादला ख्याल। लिबर्टी चौक पर स्टेज सेटअप और डिस्प्ले स्क्रीन की तनसीब पर भी गौर किया गया। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और PHA के दरमियान इंतज़ामी ताउन का लाए अमल तय।